there's a lot of learning that you can do. I personally would, I like to analyze data. So for me, identifying market trends is something that I've been doing, or I had learned to do when I was studying real estate finance. Understanding consumer behavior, investing time in actually understanding consumer behavior is also a huge advantage for anyone who is in either a D2C business or selling something directly to the consumer. I think that being open to being adaptable, to be not just be like, oh, only this department I will focus on, like keep shifting. एक चीज़ सीखो, दूसरी चीज़ सीखो, ताकि आपको हर चीज़ का कुछ कुछ तो समझ आएगा ना. So you can stitch it all together, and then the story will make sense. So like I read a lot of papers, do short courses, speak to people who are not from the trade and then who are from the trade. So you know that it's sometimes very interesting that जो हमें लगता है customer को चाहिए is very different from what the customer really wants. तो वो समझो. आई थिंक कंज्यूमर बिहेवियर आपको सिखा देगा कि आपको क्या प्रोडक्ट बिल्ड करना है. कंज्यूमर बिहेवियर कैसे गेज करते हो, लाइक टॉकिंग टू पीपल इन जनरल इन टर्म्स ऑफ. हाँ, मतलब एक होता है कि ऐसे नहीं है कि आई विल गो टू माय कस्टमर्स एंड से कि क्या चाहिए, ऐसे में कोई फॉर्म नहीं फिल कराऊंगी. ठीक है. बट स्पीक टू अ टन ऑफ ब्रोकर्स जिनको मार्केट की नब्स पता है. ओके. Speak to a ton of people who outside of your friends, let's say friends of friends, and kind of understand that, oh, is this something that works for you? There's so much you can learn from just that. It's enough then to know how you want to build your product. And I see a lot of real estate ads, developers. I do a lot of them as well. On the front page. Yeah. And I've seen your stories only. In fact, ye ad, first page, front page ad. Do you think real estate, एक तो papers and billboards are like the traditional form of marketing जहाँ पे वो होता आ रहा है बहुत टाइम से. Now there is digital marketing and social media marketing and influencer marketing and a bunch of other things. And there is founder credibility, so you create content yourself as a founder. तो मैं रियल एस्टेट के लिए वैसे कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करती, बट हाँ, कंटिन्यू योर क्वेश्चन. But my question was, do you think creating awareness, or do you think, say, advertising on paper still is a good medium? Yes. Okay. Because अगर हम डिजिटली भी बहुत लीड जेन करते हैं, जिसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोल सकते हैं, whether it's through Meta, whether it's through Google, etc. It's a mix of a few avenues when we're marketing our product. Hoardings is one. जो थोड़ी एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उन जगहों पे रखोगे अपनी होर्डिंग जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस उसके आसपास ही कुछ किलोमीटर के रेडियस में रहती है और वो रोज़ाना काम पे जा रहे हैं, तो कभी तो ऐसे होएगा कि उनको दिखेगा. रेड लाइट के पास बेस्ट स्पॉट होता है एक्चुअली, क्योंकि आप इंगेज सबसे ज़्यादा तभी करते हो, वो मिलते बहुत कम है. उसका प्राइस रेंज भी हाई होगा. वो तो जितनी अच्छी लोकेशन उतना महंगा होएगा. फिर उसके बाद आपकी जैकेट एड्स एक ये होता है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाओगे या किसी फ्लाइट में जाओगे तो पेपर आप पढ़ो या ना पढ़ो रखा होता है ना वहाँ पे, कभी तो आप उससे इंगेज करोगे. उससे ये भी होता है कि अगर आप वीकेंड को करोगे तो फिर मोस्ट वर्किंग पीपल लाइक टू डू विजिट्स व्हेन दे बाइंग एन अपार्टमेंट एट द वीकेंड, क्योंकि तब वो फ्री होते हैं. तो फ्राइडे सैटरडे एक अच्छा दिन होता है करने के लिए ऐड, क्योंकि फिर आपको वॉक-इन्स उससे मिलते हैं. फिर वो आपकी प्रोडक्ट और सेल्स टीम के ऊपर है कि वो कन्वर्ट कर पाते हैं उस लीड को कि नहीं. बट या I think hoardings are more for branding because your time of engagement with them is lesser. Right. Newspaper ads definitely do lead to conversions. 100%. What would be the percentage spread if I were to ask you, or if you have like a data in mind, where you would say that okay, conversions in terms of now I have only 3-4 avenues in mind, but add to the avenues if you feel like. So there is newspapers, there is hoardings, then there would be social media banners and content and stuff. Yeah. And then you make videos and reels and short form content and
all of that, or maybe have a real estate podcast and talk about it, right? So कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता. Okay. So उससे लोग आपको पहचान लेंगे कि दिस पर्सन इज द फेस ऑफ दिस. But does that help? कन्वर्जन में ना बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं. आप मेरा प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदोगे क्योंकि मैं आपको पसंद आई हूँ. आप मेरा प्रोडक्ट इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट पसंद आया है. Do you think in terms of distribution it helps? ब्रांडिंग हो गया वो. Personal branding. So for example, if people, you've been creating content, people know Bani, people know Bani ये करती है, ये करती है, ये करती है. मुझे ऐसे लगता है लोगों को शायद, क्योंकि मैं, इट्स सो फनी, आई थिंक मोस्ट रिकग्नाइज्ड फॉर द वर्क आई डू 2 days in a month. लोगों को लगता है मैं पॉडकास्ट करती हूँ और मैं वो काम 2 दिन महीने में करती हूँ, वीकेंड पे. It's because it's visible to people. करेक्ट. और मैं शेयर करती हूँ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है. Right. मैं मतलब रियल एस्टेट इज 85% or 80% of what I do. I don't know how that many you've been people doing know for that. 10 years. Like Yeah. over 10 years? 10 years. Yeah, 10 years. Exactly 10 years this summer. So again, coming back हाँ, to the question, correct. what would be the split like in terms of? So it depends. मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं. मेरा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है. जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मैं हर जगह करूँगी. और फिर वो गेज करना कि कौन कहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि यू नो कस्टमर आता है, वो आपको हर टाइम बताएगा नहीं. तो जैसे लॉन्च के टाइम पे अगर मैं हर जगह एडवर्टाइज करूँगी ताकि सबसे ज़्यादा मुझे बुकिंग मिले. और वो बुकिंग अब क्योंकि मैं हर जगह कर रही हूँ, ये गेज करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से आई है. राइट. क्योंकि वो लॉन्च की स्टेज है. फिर होती है एक सस्टेनेंस कि मैंने काफ़ी लॉन्च के टाइम पे बेच दिया. अब मैं धीरे धीरे करके मेरे खुद के गोल्स के हिसाब से, हर प्रोजेक्ट की सेल्स के भी अलग गोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि यार ज़्यादा इन्वेंट्री अपफ्रंट बेचना इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर मी, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होएगी. एक होता है मुझे लगता है यार इसको मुझे क्रीम को वो लास्ट में रखना है क्योंकि बहुत ही मतलब फैबुलस लोकेशन है, तो मैं धीरे धीरे बेचूंगी. उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है. तो फर्स्टली इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मेरी स्ट्रैटेजी उस प्रोजेक्ट को लेके क्या है. ऑल प्रोजेक्ट्स फंक्शन डिफरेंटली. देन इट्स अबाउट व्हाट स्टेज इज़ माई प्रोजेक्ट एट. अगर मैं सस्टेनेंस पे हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक ओके मुझे एक्स नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हर महीने इसमें बेचने हैं, तो ओवर अ क्वार्टर आई विल डू अ मिक्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एवरी क्वार्टर आई विल कीप री स्ट्रैटेजाइजिंग कि एक मैंने अगर जैकेट ऐड कर ली, 2 होर्डिंग्स कर ली, मे बी मैं होर्डिंग्स को बढ़ा दूँ क्योंकि वहाँ की रोड बन गई है और अब वो होर्डिंग ज़्यादा दिखेगी. यू नो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे अब कंप्लीट हो गया है, तो यू नो दैट्स अ वेरी हॉट मार्केट. तो माई स्ट्रैटेजी विल ऑल्सो हैव टू चेंज बेस्ड ऑन व्हाट स्टेज इज़ माई प्रोजेक्ट एट. राइट राइट. तो मुझे सबसे ज़्यादा डिजिटल लीड्स वर्क रियली वेल. उनको कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो आपको फ़ोन करेंगे, फिर फ़ोन करके एक दिन चुनेंगे जब वो आपके साइट पे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, 90 डे तक चल सकता है. बट मेरा क्लोजर एक जैकेट ऐड में 30 days में हो सकता है. जैकेट ऐड क्या होता है? जो आप न्यूज़पेपर का जैकेट होता है ना, फर्स्ट पेज, उसको जैकेट ऐड बोलते हैं. ओके ओके. तो उसमें मेरा 30 दिन में द ग्लॉसी हो या ना हो वो तो डिपेंड करता है. ग्लॉसी का रेट अलग होता है, उसका रेट अलग होता है. तो